Hello friends, welcome to my video. Today we will do important MCQ related to clavicle bone. Our first question is, the clavicle transmit the weight of limb to the option A shoulder, option B scapula, option C sternum, option D humerus. हमारी clavicle bone अपना weight किस bone को transmit करती है? So our correct option is option C sternum. Next question number 2. The clavicle is only bone that lies. Option A vertically, option B horizontally, option C transversely, option D laterally. Clavicle bone हमारी bodies में ऐसी long bone है जो horizontally lie करती है. Hence the correct option is option B. Next question number 3. The clavicle is option A flat bone, option B short bone, option C long bone, option D sesamoid bone. So the correct option is option C. The clavicle is long bone because it has lateral, medial and a shaft. Next question number 4. The bone which is subcutaneous throughout. Option A clavicle, option B scapula, option C skull, option D ribs. ऐसी कौन सी बोन है जो सबक्यूटेनियस होती है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लैविकल. Next question 5. The first bone to start ossifying is option A radius, option B scapula, option C sternum, option D clavicle. हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सी पहली बोन होती है जिसका ऑसिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी क्लैविकल. Question number 6. The only long bone which ossifies in membrane is option A radius, option B clavicle, option C ulna, option D humerus. The correct option is clavicle. Clavicle ही ऐसी long bone है जिसकी ossification membranous होती है. Next question number 7. The clavicle is only long bone which has primary center of ossification. Option A 4, option B 3, option C 5, ऑप्शन डी 2. क्लैविकल के अंदर कितने प्राइमरी सेंटर पाए जाते हैं? तो क्लैविकल के अंदर 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं. हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द क्लैविकल हैज ऑप्शन ए 2 ends एंड शाफ्ट, ऑप्शन बी 1 end एंड नो शाफ्ट, ऑप्शन सी नो ends एंड 2 शाफ्ट, ऑप्शन डी 4 ends. क्लैविकल के पास 2 end होते हैं, दैट इज लेटरल एंड एंड medial end, which is also known as acromial end and sternal end, and shaft. Hence the correct option is option A. Next question number 9. The shaft of clavicle is divisible into option A medial 2/3 and lateral 2/3, option B lateral 1/3 and medial 2/3, option C lateral 1/3 and medial 2/4, option D medial 1/3 and lateral 2/3. The correct option is option number B. क्लैविकल की जो सॉफ्ट होती है वो लेटरली 1/3 पोर्शन कवर करती है एंड मेडियल 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. लेटरल 1/3 ऑफ सॉफ्ट ऑफ क्लैविकल हैज ऑप्शन ए 4 surfaces and no border, option B 2 surface and 3 border, option C 3 surface and 2 border, option D 2 surface and 2 border. लेटरल 1/3 पोर्शन जो होता है शाफ्ट का उसके पास 2 सर्फेसेस एंड 2 बॉर्डर होते हैं. हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. मेडियल 2/3 ऑफ सॉफ्ट ऑफ क्लैविकल हैज ऑप्शन ए 2 surfaces, ऑप्शन बी 4 surfaces, ऑप्शन सी 2 surfaces and 2 border, ऑप्शन डी 4 border and no surface. जो मेडियल पोर्शन होता है शाफ्ट का उसके पास केवल 4 सर्फेसेस होते हैं. हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. द inferior surface of lateral 1/3 of shaft of clavicle present an elevation called and a ridge called. लेटरल 1/3 शाफ्ट में
जो एलिवेशन होता है उसको क्या कहते हैं और वहाँ पे रेज प्रेजेंट होता है उसको हम वहाँ पे कौन सी रेज पाई जाती है? ऑप्शन ए कोनॉइड रेज, ट्रेपेजॉइड ट्यूबरकल, ऑप्शन बी ग्लिनॉइड ट्यूबरकल, ट्रेपेजॉइड रेज, ऑप्शन सी कोनॉइड ट्यूबरकल, ट्रेपेजॉइड रेज, ऑप्शन डी इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल एंड ऑसिपिटल रेज. So the correct option is option C, because the elevation प्रेजेंट होती है उस एलिवेशन को कोनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं और जो रेज होती है वो ट्रेपेजॉइड रेज होती है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. दिस इज द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. दिस इज द सुपीरियर व्यू ऑफ क्लाविकल. यहाँ पे हमें पॉइंट ए को और बी को आइडेंटिफाई करना है. जो पॉइंट ए है वो लेटरल साइड है और पॉइंट बी मीडियल साइड है क्लाविकल बोन की. तो ऑप्शन ए है एक्रोमियल एंड एंड बी स्टर्नल एंड. ऑप्शन बी स्टर्नल एंड, एक्रोमियल एंड. ऑप्शन सी कोनॉइड एंड, ट्रेपेजॉइड एंड. ऑप्शन डी एक्रोमियल एंड एंड डेल्टॉइड एंड. तो लेटरल साइड में जो क्लाविकल होती है वहाँ पे हमारी एक्रोमियल एंड प्रेजेंट होती है और मीडियल साइड पे स्टर्नल एंड होता है. हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. इट इज़ अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. इसमें फिगर ए एंड फिगर बी को आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन ए ट्रैपीजियस सबक्लेवियस, ऑप्शन बी पिक्टोरालिस माइनर, बी डेल्टॉइड, ऑप्शन सी डेल्टॉइड, पिक्टोरालिस मेजर, ऑप्शन डी कोनॉइड एंड डेल्टॉइड. तो जो क्लाविकल की बोन होती है उसके लेटरल साइड में नीचे की तरफ डेल्टॉइड मसल होती है और मीडियल साइड में पिक्टोरालिस मेजर होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. इट इज आल्सो अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. ए एंड बी को आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन ए पिक्टोरालिस मेजर एंड डेल्टॉइड, ऑप्शन बी डेल्टॉइड एंड स्टर्नोहायोइड मसल, ऑप्शन सी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड एंड ट्रैपेजियस, ऑप्शन डी ट्रैपेजियस एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड. तो जो हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट को हम ट्रैपेजियस मसल्स कहेंगे और जो ऑप्शन बी है वो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है. हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. लेटरल और एक्रोमियल एंड ऑफ क्लाविकल इज. लेटरल एंड को ही हम एक्रोमियल एंड कहते हैं. अब इसका शेप कैसा होता है? ऑप्शन ए फ्लैट, ऑप्शन बी क्वाड्रेंगुलर, ऑप्शन सी ट्रायंगल, ऑप्शन डी सर्कुलर. तो जो लेटरल एंड होती है उसका शेप फ्लैट होता है. हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. मीडियल और स्टर्नल एंड ऑफ क्लाविकल इज. ऑप्शन ए फ्लैट, ऑप्शन बी क्वाड्रेंगुलर, ऑप्शन सी ट्रायंगल, ऑप्शन डी सर्कुलर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मीडियल एंड क्वाड्रेंगुलर शेप में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. एट द लेटरल एंड द क्लाविकल आर्टिकुलेट विथ ह्यूमरस, मेनोब्रियम, एक्रोमियन प्रोसेस, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड. जो लेटरल एंड होता है क्लाविकल का वो आर्टिकुलेट होता है एक्रोमियन प्रोसेस से. Hence the correct option is option C. Next question, question number 19. At the medial end, the clavicle articulate with option A manubrium sterni, option B sternohyoid muscle, option C trapezius, option D glenoid. Medial portion में जो clavicle bone होती है उसका articulation होता है manubrium sterni से. Hence the correct option is 22. The muscles are attached to lateral 1/3 shaft of clavicle. ऑप्शन ए डेल्टॉइड, ऑप्शन बी ट्रैपेजियस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन. जो लेटरल 1/3 होती है साफ्ट की उससे कौन कौन सी मसल अटैच्ड होती हैं? तो ऑप्शन बी ट्रैपेजियस एंड ऑप्शन ए डेल्टॉइड. ये दोनों मसल्स हमारी लेटरल साइड में प्रेजेंट होती हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. The rough superior surface of medial 2/3 of the shaft of clavicle gives origin to the clavicular head of. Option A pectoralis major, option B sternohyoid muscle, option C trapezius, option D sternocleidomastoid. जो medial 2/3 पोर्शन होता है क्लाविकल का वो ओरिजिन प्रोवाइड करती है क्लाविकुलर हेड ऑफ sternocleidomastoid. Hence the option D is correct. Next question,
Question number 24. Regarding the clavicle, all are correct except option A, nutrient foramen lies at medial end of groove. Option B, subclavius muscle act as a cushion. Option C, ossifies from two primary center and one secondary center. Option D, clavicle may be congenitally absent or imperfectly developed in disease called cleidocranial dysostosis. इसमें क्लैविकल के अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ करके। तो जो ऑप्शन 1 है वहाँ पे दिया है न्यूट्रिएंट फोरामेन लाइज एट मीडियल एंड ऑफ ग्रोव। जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होती है वो लेटरल एंड पे लाई करते हैं, हेंस द करेक्ट ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। हेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट। अदर ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लैविकल जब अब्सेंट होता है या इम्परफेक्टली डेवलप्ड होता है उस डिजीज़ को हम क्लेडोक्रैनियल डिसोस्टोसिस कहते हैं। हमारे क्लैविकल के अंदर ऑसिफिकेशन के लिए 2 प्राइमरी सेंटर होता है और 1 सेकेंडरी सेंटर होता है, और सब क्लेवियस मसल एक कशन की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. The subclavian groove of medial 2/3 of shaft of clavicle gives insertion to option A, subclavius muscle, option B, sternohyoid muscle, option C, trapezius muscle, option D, deltoid. तो जो सब क्लेवियन ग्रूव होती है वो मीडियल पोर्शन में इंजेक्शन देती है सब क्लेवियस मसल्स को, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. द मसल्स आर अटैच्ड टू मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट ऑफ क्लैविकल एक्सेप्ट। मीन्स हमारी जो मीडियल 2/3 पोर्शन होती है शाफ्ट की उसमें कौन कौन सी मसल का अटैचमेंट होता है। ऑप्शन ए सबक्लेवियस मसल, ऑप्शन बी स्टर्नोहॉयड मसल, ऑप्शन सी ट्रैपेजियस मसल, ऑप्शन डी पिक्टोरालिस मेजर, ऑप्शन ई स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। जो 2/3 पोर्शन होता है मीडियल का वहाँ पे 4 मसल का इंजर्शन होता है एक्सेप्ट ऑप्शन सी ट्रैपेजियस मसल। ट्रैपेजियस मसल एंड डेल्टॉइड मसल हमारे लेटरल 1/3 पोर्शन में प्रेजेंट होता है। हमारे क्लैविकल पे 6 मसल्स का अटैचमेंट होता है, 4 मीडियल साइड से और 2 लेटरल साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल इज ऑप्शन ए जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3, ऑप्शन बी जंक्शन ऑफ मीडियल 1/3 एंड लेटरल 2/3, ऑप्शन सी जंक्शन ऑफ मीडियल 1/3 एंड लेटरल 1/3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मोस्ट कॉमन पॉइंट जो होता है फ्रैक्चर का वो जहाँ पे बोन्स की कर्वेचर मीट करती हैं, हेंस हमारा साफ्ट का ही पोर्शन आएगा तो लेटरल और मीडियल साफ्ट का ही पोर्शन आएगा, तो हेंस हमारा जो लेटरल पोर्शन होता है 1/3 होता है और मीडियल 2/3, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28. ऑल द फॉलोइंग लिगामेंट्स आर अटैच्ड टू क्लैविकल एक्सेप्ट ऑप्शन ए कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, ऑप्शन बी कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट, ऑप्शन सी सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट, ऑप्शन डी एक्रोमियोक्लैविकुलर लिगामेंट। हमारी क्लैविकल मसल से कौन कौन सी लिगामेंट अटैच्ड होती हैं। ऑप्शन सी सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट, ये क्लैविकल से अटैच नहीं होती है, बाकी 3 अटैच्ड होती है और एक इंट्रा क्लैविकुलर लिगामेंट होती है वो भी क्लैविकल से अटैच्ड होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. 8 like bandages is used in manufacture of A scapula, B humerus, C radius, D clavicle. मीन्स किस बोन के फ्रैक्चर में जो बैंडेजेस की जाती है वो 8 लाइक शेप में की जाती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, क्लैविकल के फ्रैक्चर के टाइम पे ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. द सेकेंडरी सेंटर ऑफ क्लैविकल अपीयर्स एट विच पार्ट. ऑप्शन ए मेडियल एंड, ऑप्शन बी शाफ्ट, ऑप्शन सी स्टर्नल एंड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। हमारे पास 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं और 1 सेकेंडरी सेंटर होता है। अब ये जो सेकेंडरी सेंटर होता है वो क्लैविकल के किस पार्ट पे अपीयर होता है, तो जो मेडियल एंड होता है जिसको हम स्टर्नल एंड कहते हैं वहाँ पे सेकेंडरी सेंटर का अपीयरेंस होता है, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड सी। Thank you. If you like the video, then like, share and subscribe.